السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے صفت قلقلہ کو پڑھا تھا، جس کے اندر ہم نے حروف قلقلہ کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور قلقلہ کی 3 اقسام بھی پڑھی تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفت لین کے بارے میں، ٹھیک ہے، صفت لین کے بارے میں، صفت لازمہ غیر متضادہ میں سے صفت لین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ صفت لین کا لغوی معنی کیا ہے۔ یاد رکھیے صفت لین کا لغوی معنی ہے نرمی۔ نرمی، ٹھیک ہے، نرمی۔ صفت لین کا لغوی معنی ہے نرمی یا ملائمت، یا ملائمت، یا ملائمت۔ جیسے ہم نرمی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا نرم مزاج ہے، اس طرح کوئی چیز نرم ہوتی ہے جیسے کپاس ہوتا ہے، یہ اس معنی میں ہے۔ صفت لین کا لغوی معنی ہے نرمی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ صفت لین کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ یاد رکھیے صفت لین کا اصطلاحی معنی ہے حروف کو نرمی سے ادا کرنا، حروف کو نرمی سے ادا کرنا۔ صفت لین کا اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے۔ صفت لین کا اصطلاحی معنی حروف کو نرمی سے ادا کرنا، ٹھیک ہے، حروف کو نرمی سے ادا کرنا۔ تو اب ہم جانیں گے کہ یہ صفت لین ہے یہ کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو صفت لین ہے یہ 2 حروف کے اندر پائی جاتی ہے، ایک واو، دوسرا یا، ٹھیک ہے۔ یہ صفت لین جو ہے یہ 2 حروف کے اندر پائی جاتی ہے، ایک واو اور یا، جنہیں حروف لین کہا جاتا ہے، جنہیں حروف لین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفت لین جو ہے یہ 2 حروف کے اندر پائی جاتی ہے جنہیں حروف لین کہا جاتا ہے، ایک واو، دوسرا یا، ٹھیک ہے۔ جب ان سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے، جب ان سے پہلے زبر ہو، جبکہ ان سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے اور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ واو اور یا، واو ساکن ہو اور یا ساکن ہو، واو ساکن ہو اور یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو یہ دونوں حروف لین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ صفت لین کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے صفت لین کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ حروف لین کو ان کی مخرج سے، حروف لین کو ان کی مخرج سے بغیر جھٹکا دیے ہوئے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ادائیگی حروف لین کو ان کی مخرج سے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری بات ہے۔ ادائیگی حروف لین کو ان کی مخرج سے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو 2 حروف ہیں، ایک واو لین، دوسرا یا لین، پہلے یہ بات یاد میں رکھیں کہ حروف لین یہ 2 ہیں، واو اور یا۔ اب یہ حروف لین کب ہوں گی؟ جب واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو واو لین ہوگا،
जब या साकिन से पहले वाली हरफ पर ज़बर होगी तो या लीन होगी, ठीक है। अब ये हुरूफ लीन है। अब ये हुरूफ लीन कैसे हैं? वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर है, वाव लीन है। या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर है, या लीन है, ठीक है। अब इनको कैसे पढ़ा जाएगा? अब इनको जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? जल्दी और नरमी के साथ, ठीक है। इस बात को आपने ज़हन में रखना है, जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी बात और अहम बात है कि हुरूफ लीन को जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाता है। झटका नहीं देना, मजहूल नहीं पढ़ना, खींच कर नहीं पढ़ना, ठीक है। झटका नहीं देना, सख्ती भी नहीं करनी, झटका भी नहीं देना, मजहूल भी नहीं पढ़ना, खींच कर भी नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर कैसे पढ़ना? जल्दी और नरमी के साथ पढ़ना, ठीक है। अब इनकी अदायगी हुरूफ लीन को उनकी मखरज से बगैर झटका दिए नरमी से अदा किया जाता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हुरूफ लीन की मश्क, ठीक है। जैसे हम वाव को पढ़ते हैं, ब वाव ज़बर बाव, ब वाव ज़बर बाव, ठीक है। कुरान के अंदर है ब वाव ज़बर बाव, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें वाव साकिन है, वाव के ऊपर जज़म सुकून है, ठीक है। अब वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर क्या है? ज़बर है। अब वाव क्या है? वाव लीन है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ पढ़ेंगे, झटका नहीं देंगे, ठीक है। झटका भी नहीं देंगे, मजहूल भी नहीं पढ़ेंगे और सख्ती भी नहीं करेंगे और खींच कर भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ। बाव बाव ज़बर बाव, ठीक है। अब या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो या लीन होगी, ठीक है। तो हुरूफ लीन को कैसे पढ़ते हैं? जल्दी और नरमी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। झटका भी नहीं देना, मजहूल भी नहीं पढ़ना, खींच कर भी नहीं पढ़ना, सख्ती भी नहीं करनी, ठीक है। जैसे ब या ज़बर बाई, ठीक है। बाव बाई, ठीक है। बाव बाई, बाव बाई, ठीक है। तो आप नोट करें कि नरमी के साथ पढ़ रहे हैं। बाव बाई, बाव बाई, झटका नहीं दे रहे हैं, बाव बाई, झटका नहीं दे रहे हैं, बाव बाई, ठीक है। ताव ज़बर ताव, ता या ज़बर ताई, ताव ताई, ठीक है। अब वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर है तो वाव लीन होगा और वाव लीन को जल्दी और नरमी के साथ पढ़ते हैं। ताव ताव, ठीक है। ता या ज़बर ताई, ठीक है। अब या साकिन है, या साकिन से पहले वाले पर ज़बर है तो या लीन होगी, जल्दी और नरमी के साथ पढ़ेंगे, झटका नहीं देंगे, ठीक है। ताव ताई, ताव ताई, ठीक है। वाव ज़बर ताव, ताव, ठीक है। वाव वैसे पढ़ रहे हैं, जल्दी और नरमी के साथ पढ़ रहे हैं, झटका नहीं दे रहे हैं। जैसे ताव ताव, ठीक है, ये झटका है, ताव, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ, ताव ताव, ठीक है। ता या ज़बर ताई, ताव ताई, ताव ताई, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है? इनको नरमी के साथ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसका लुग़वी माना है नरमी, मुलायमियत, ठीक है। और इस्तिलाही माना है हुरूफ को नरमी से अदा करना, ठीक है। और इसकी अदायगी हुरूफ लीन को उनकी मखरज से बगैर झटका दिए हुए नरमी से अदा करना, ठीक है। ताऊ ताई, ठीक है। जीम वाव ज़बर जाऊ, जीम या ज़बर जाई, ठीक है। जाऊ जाई, जाऊ जाई, ठीक है। जैसे कुरान के अंदर मिसालें हैं, खौफिन खौफिन, ठीक है। वैलुन, वाव या ज़बर वई, या लीन है। या आप कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ, बगैर झटका दिए हुए, झटका नहीं देंगे, खींच कर भी नहीं पढ़ेंगे और मजहूल भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे बाओ बे, ताओ तय, ताओ तय, जाओ जय, ये मजहूल है और झटका भी नहीं देंगे, मजहूल भी नहीं पढ़ेंगे और खींच कर भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे बाऊ बई, ठीक है। ताऊ तय, ये खींच कर पढ़ना है, ये गलत है, ठीक है। फिर कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ पढ़ेंगे। बाऊ बई, ताऊ तय, ताऊ तय, जाऊ जय, ठीक है। हाउ हाई, खौ खई, वैलुन वई, वाव या ज़बर वई, ठीक है। वैलुन, ठीक है। यहाँ पर
या लीन, या साकिन से पहले वाले पर वाव पर ज़बर है। तो अब या को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ, ठीक है। वैलुन, वै, ठीक है, झटका नहीं देंगे, वै वै ये झटका है, और खींच कर भी नहीं पढ़ेंगे वैलुन, ये खींच कर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मजहूल भी नहीं पढ़ेंगे, वैलुन वै वै, वाव या ज़बर वै, ये गलत है। फिर कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ बगैर झटका दिए हुए, वै वैलुन, ठीक है। यौमिन, या वाव ज़बर यौ, ठीक है। यौमिन, वाव साकिन से पहले वाले पर ज़बर वाव लीन होगा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ, यौमिन यौमिन, ठीक है। कैसे पढ़ना है इनको? जल्दी और नरमी के साथ पढ़ना है, ठीक है। लैसा, लैसा, ठीक है। लाम या ज़बर लै, या साकिन से पहले वाले पर ज़बर या लीन होगी, ठीक है। फिर कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ बगैर झटका दिए हुए, ठीक है। लैसा, लै, लैसा, ठीक है। तो ये हुरूफ लीन है, वाव और या। वाव साकिन से पहले वाले पर ज़बर है तो वाव लीन होगा, और या साकिन से पहले वाले पर ज़बर हो तो या लीन होगी, ठीक है। ये हुरूफ लीन है, उनको जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। जिन्हें हुरूफ लीन कहा जाता है, सिफ़त लीन का लुग़वी माना है नरमी, ठीक है, और उसका इस्तिलाही माना है हुरूफ को नरमी के साथ अदा करना, ठीक है। और उसकी अदायगी है हुरूफ लीन को उनकी मखरज से नरमी से बगैर झटका दिए हुए अदा करना। तो अब यहाँ पर आपने एक बात को और नोट करना है, ठीक है, कि वाव साकिन होता है, वाव साकिन होता है, उसके ऊपर जज़म सुकून होती है, और उससे पहले वाले हरफ के पर पेश होता है, तो ये वाव लीन नहीं होगा, ये वाव मद्दा होगा, ठीक है। जैसे ब वाव पेश बू, ठीक है, तो अब इसको खींच कर पढ़ा जाएगा, ना कि जल्दी और नरमी के साथ, ठीक है। तो ये वाव मद्दा है, वाव लीन नहीं है, इसको खींच कर पढ़ा जाएगा, बू बू, ठीक है। और या साकिन होती है, ठीक है, या साकिन होती है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है? या मद्दा होती है, या लीन नहीं होती। या लीन तब होगी जब या साकिन से पहले ज़बर होगी, ठीक है, फिर उसको जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। या मद्दा तब होगी जब या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर होगी, तब या मद्दा को खींच कर पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे बा या ज़ेर बी, बी, ठीक है, क्योंकि हुरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है। और अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले वाले पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है। तो इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। हुरूफ मद्दा अलिफ वाव और या, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी, ठीक है। फिर उनको खींच कर पढ़ा जाता है एक अलिफ की मिकदार पर, ठीक है। अब ये हुरूफ लीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगी, ठीक है। इनको जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाता है, बौ बै दौ तई, ठीक है। जैसे कुरान के अंदर मिसाल है बैन यदैहा, बैन बैन, ठीक है, बा याद वर बै, या लीन है, या साकिन से पहले ज़बर है, बैन यदैहा, यदै बा या ज़बर बै, यहाँ पर या लीन, या साकिन से पहले वाले पर ज़बर है, बैन बैन। कैसे पढ़ेंगे? जल्दी और नरमी के साथ, यदैहा, यदै दाल या ज़बर दै, यहाँ पर भी या लीन है, या साकिन से पहले वाले पर ज़बर है, बैन यदैहा, यदैहा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी मुख्तसर क्लास थी, ठीक है, जिसमें हमने सिफ़त लाज़िमा गैर मुतज़ादा में से सिफ़त लीन को पढ़ा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी और आपके जहन में बैठ गई होगी। तो अब मिलेंगे दूसरी क्लास में, तब तक के लिए हमको दुआ में याद रखना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।